It's another wonderful day that God is giving us. एक और खूबसूरत दिन जो परमेश्वर हमें दे रहे हैं. Oh, we are learning so many things about the everlasting gospel. आहा, सनातन सुसमाचार के बारे में कितनी सारी बातें हमें सीखने को मिल रही है. If we just rewind little, we are studying from Revelations chapter 14 verse 6. अगर क्या क्या सिखाया थोड़ा सा स्मरण कराऊं तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 14 वचन 6 में से देखा था हमने. The Bible says in this verse, वचन लिखा है बाइबल में ऐसा. And I saw another angel fly in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach unto them that dwell on the earth, and to every nation and kindred and tongue and people. फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था. Now the Bible says here, और बाइबल में यहाँ पर यह भी लिखा है this gospel is for everyone. कि यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है. In the last message, पिछले संदेश में we heard what happened to Lot's wife. हमने सुना कि लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ था. What has happened to her life? क्या हुआ था उसके जीवन में. The gospel is also to her. कि सुसमाचार उसके लिए भी तो था. Is to every man, every nation. हर मनुष्य, हर जाति, हर देश के लोगों के लिए. No one is an exemption from this gospel. इस सुसमाचार से कोई भी छूटा नहीं है. From this gospel which the angel of God is bringing from the throne of God. इसी सुसमाचार को स्वर्गदूत परमेश्वर के सिंहासन से लेकर आ रहे हैं. The Bible says, बाइबल यूं कहती है, bringing from heaven, स्वर्ग से लेकर आ रहे coming हैं. from heaven, स्वर्ग से आ रहे हैं. coming from the throne of God, which means जिसका अर्थ है परमेश्वर के सिंहासन से आ रहे हैं. God himself is giving it. खुद परमेश्वर दे रहे हैं. तो He is telling us, वो हमसे कह रहे हैं, now you need to believe this. अब आपको यह विश्वास करना है. Now whatever we have believed in the past, जो भी हमने बीते दिनों में विश्वास किया था, no, that is not true. वो सच नहीं है. This is true ये सच है. because क्योंकि this will glorify Jesus. इससे यीशु मसीह को महिमा मिलेगी. Jesus is glorified in heaven. यीशु मसीह स्वर्ग में महिमा पाता है. Everyone will bow before him हर कोई, हर एक जन यीशु के सामने and झुकेगा will sing unto him. और उसके लिए गाएंगे. Blessing, glory, honor, power, riches and wisdom belongs to Jesus. आशीष और आदर और महिमा और सामर्थ युगानुयुग तेरी है प्रभु. To him alone, to Jesus alone. केवल तुझे मिले, सिर्फ तुझे मिले. And now Jesus spoke about Lot's wife. अब यीशु मसीह ने लूत की पत्नी के बारे में कहा था. I want to talk to you all from one parable today. आज मैं एक दृष्टांत में से आपसे बात करूंगा. If we are unable to finish this parable in this session, अगर इस सत्र में अगर ये दृष्टांत पूरा नहीं हो पाया we will try to continue it in the coming session. अगले सत्र में भी इसी दृष्टांत को हम जारी रखेंगे. There is another warning. एक और चेतावनी आ रही है. There is another example that Jesus is giving. यीशु मसीह ने एक और उदाहरण से हमने समझाया. Because the Bible says क्योंकि बाइबल यूं कहती है in Luke chapter 16 लूका के अध्याय 16 में and verse 19, वचन 19 में Jesus is speaking these words. यीशु मसीह कह रहे हैं ये शब्द. It is written in red. लाल अक्षरों में लिखा है. Came out of the lips of Jesus. यीशु मसीह के होंठों से निकला. And everything, if Jesus is spoken, then it is true. अगर हर वो शब्द यीशु मसीह ने कहा है मतलब वो सच ही है. Because he is the truth. क्योंकि वो ही सच्चाई है. Now in this verse, अब इस वचन में Luke chapter 16, लूका अध्याय 16 के verse 19, वचन 19 में Jesus said, यीशु ने कहा, there is a certain rich man, एक धनवान मनुष्य था which is clothed in purple fine linen, जो बैंजनी वस्त्र और मलमल के कपड़े पहनता था. and he is not lacking anything. और उसे कोई कमी घटी नहीं थी. He is a rich man. धनवान मनुष्य था. He is having everything. उसके पास सब कुछ उपलब्ध था. He gained so many things. उसने बल्कि इतनी चीजें हासिल की थी. There is nothing that which he lack. ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जो उसको कमी पड़े. Now it is not written whether he is a righteous man nor unrighteous man. अब ये ऐसा तो नहीं लिखा है कि वो धर्मी था या अधर्मी था. It is not written if he is a sinner or a good man. वो अच्छा मनुष्य था या पापी मनुष्य था, ऐसा भी नहीं लिखा. Jesus said, यीशु ने कहा, there is a certain rich man. एक धनवान मनुष्य था. He is just a rich man. बस एक धनवान मनुष्य था वो. And now he is having everything. अब उसके पास है सब कुछ. Good clothing. अच्छे अच्छे कपड़े. Oh, wonderful.
ओ खूबसूरत कपड़े, colorful, रंग बिरंगी, fine linen. ओ मलमल के कपड़े, He's wearing costly things. ओ महंगे महंगे वस्त्र पहनता है, Very rich man. बहुत धनवान आदमी, Gained everything. जिसने सब कुछ पाया जीवन The में। same rich man, वही धनवान मनुष्य when he died, जब वो मरा, when he was buried, जब गाड़ा गया he opened his eyes in the hell. और आंखें खोली तो कहां से? नरक में से आंखें खोली, What अधोलोक में। What happened to him? क्या हुआ था ऐसा उसके साथ? Is he a believer or an unbeliever? क्या वो विश्वासी था या अविश्वासी था? Jesus never spoke anything about it. यीशु ने कभी भी उसके बारे में और कुछ ज्यादा जिक्र नहीं किया। But if you read the Bible carefully, लेकिन अगर आप बाइबल को सावधानी से पढ़ते हैं तो he is telling these things to the Pharisees, ये फरीसियों को यीशु मसीह बातें बता रहे हैं, which means जिसका मतलब है those who know the law. उन लोगों को कह रहे हैं जो लोग प्रभु को जानते थे। Maybe I believe शायद मैं ये मानता हूँ this rich man यह धनवान मनुष्य is a believer. कि मान लो कि वो विश्वासी था। I will tell you now. अभी बताता हूँ, He closed his eyes, he died, he was buried, Bible says. क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो गाड़ा गया और उसने अधोलोक में अपनी आंखें खोली And now he opened his eyes in the hell. और अधोलोक से उसने आंखें खोलकर देखी, उठाई। I know one family. मैं भी एक परिवार को जानता हूँ The husband of that family, the head of the family, works in a forest department. कि वो परिवार का जो मुखिया था, घर का जो व्यक्ति था, वो वन विभाग के लिए काम करते थे। So he decided to build a house. उन्होंने फैसला किया कि मैं घर बनाऊंगा So he bought a land in the center of the city. और शहर के बीचों बीच उन्होंने जमीन खरीदा। Then he thought he will build a beautiful house. फिर उन्होंने सोचा कि एक खूबसूरत घर बनाऊंगा He मैं। told everyone, I will build a house which no man is having in this city. उन्होंने सबको बताना शुरू कर दिया कि मैं ऐसा घर बनाऊंगा कि इस शहर में किसी का भी घर वैसा नहीं होगा। Now this man, अब ये आदमी he brought all the teak wood from the forest. और जंगल से सहारे साग की लकड़ियां काट काट कर लाया। Now he started building the house. अब वो घर बनाने लगा। Everything with the teak wood. सब कुछ साग की लकड़ियों से बन रहा है। Flooring with the teak wood. फर्श भी साग की लकड़ियों का, Walls with the teak wood. दीवारें भी साग की लकड़ियों का, Roof with the teak wood. छत भी साग की लकड़ियों का, Bathrooms with the teak wood. और बाथरूम भी साग की लकड़ियों I का। went to that house. मैं उस घर में गया। Everywhere you will only see wood. जहां भी आप नजर घुमाएंगे लकड़ियों से ही लकड़ियां Such भरा a है। beautiful house. इतना खूबसूरत बनाया था। Every day evening he will stand by the house. हर रोज शाम को घर के बाहर खड़ा रहता And when the workers build it, और जब कर्मचारी लोग मेहनत करते he will call his friends, अपने मित्रों को बुलाता था show them each and every area of the house. और घर का हर एक कोना उनको दिखा था And he told them, और उनसे कहता था, have you ever seen such a house in the city? क्या इस शहर में कभी ऐसा घर देखा है तुमने? Then he wanted a housewarming, और फिर उसने गृह प्रवेश रखा printed a beautiful invitation, और खूबसूरत आमंत्रण पत्रिका छापी, very costly. महंगा वो भी। And now और अभी he was going all around giving the और invitations. सब जन को आमंत्रण पत्रिका बांटते हुए जा When रहे। he was traveling to another city, जब वो दूसरे शहर की ओर जा रहे थे, he met with an accident उनका एक्सीडेंट हो गया and he was spot dead. और दुर्घटना में वो मारे गए। He उधर ही thought के he will उधर। live happily in that house, उन्होंने सोचा कि इस घर में मैं बहुत खुशी खुशी से रहूंगा, but he was dead. लेकिन वो मर गया। He was dead. मर गया। His wife became a widow. उसकी पत्नी विधवा हो गई, His children became orphans. उसके बच्चे अनाथ हो गए। No father for them. अब उनके लिए कोई पिता नहीं रहा। What is the use of gaining things in this world? इस दुनिया में चीजों को हासिल करने से क्या लाभ होगा? This rich man, ये धनवान मनुष्य भी, his vision is to gain things in this world. उसका एकमात्र दर्शन ये है कि ये दुनिया की चीजें मैं हासिल करूंगा। He was died, मर गया एक दिन। and the Bible says बाइबल कहती है he was buried. वो गाड़ा गया। He was buried. वो गाड़ा गया। Nothing heard about what he have. उसके पास क्या क्या था किसी ने कुछ नहीं सुना। Everything is buried. सब कुछ गाड़ दिया गया। Everything will pass away. सब चीजें टल जाएगी, But the word of God is eternal, Bible says. लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। The word of God is forever and ever and ever. सदा 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 के लिए परमेश्वर का वचन बना रहेगा। Jesus is talking to the Pharisees यीशु मसीह ये बातें फरीसियों को बता रहे हैं। and he's telling them,
उनसे कह रहे हैं, Now listen to this parable. अब ये दृष्टांत सुनो, You are talking more about the worldly things. तुम दुनियादारी की इतनी सारी बातों के विषय में बात कर रहे हो। Today we see lot of preachings outside. आज के जमाने में बहुत से प्रचारों को देख रहे हैं बाहर, It is like a noise, ये मानो एक शोर शराबे की तरह है, not pleasant to the ears, कानों को सुनने के लिए सुखद नहीं लग not रहे हैं, pleasant to the heart. ना ही दिल के लिए सुकून देता है। They preach about acquiring things in this world, दुनिया में चीजों को हासिल कैसे करते हैं वही सिखा रहे हैं, but nothing about Jesus. यीशु के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे हैं। What happened to this rich man? इस धनवान मनुष्य का देखो क्या हुआ, A rich man. ये धनवान आदमी, He was called a rich man. धनवान करके कहा गया। Jesus himself said he is a rich man. खुद यीशु ने कहा वो धनवान था, तो Certain rich man. एक फलाना धनवान मनुष्य था, But what are his riches? लेकिन उसका असली धन क्या क्या है, What are his riches? क्या है उसके पास धन। And now Jesus और अब यीशु not only spoke about this rich man, धनवान के बारे में तो कहा ही कहा, लेकिन he, साथ में he also spoke about another person एक और व्यक्ति के बारे में कहा था, who is living a life contrary to this rich man. ये धनवान के बिल्कुल विपरीत दुर्दशा जीवन जी रहा है। His name is Lazarus. उसका नाम था लाजर। And Jesus designated him as a beggar Lazarus. यीशु मसीह ने उसका जिक्र करते हुए कहा कंगाल लाजर करके, Addressed him as a beggar Lazarus. उसका उच्चारण किया कंगाल लाजर। If you read this parable very carefully, अगर सावधानी से अगर आप ये दृष्टांत पढ़ेंगे, now nowhere Jesus mentioned that he begged anything. कहीं पर भी ये तो जिक्र नहीं किया कि उसने कहीं भीख मांगी, Nothing. कुछ नहीं, Nothing. कुछ भीख नहीं मांगी थी। And the Bible says बाइबल ये कहती है his body was with full of sores. और उसके बदन पे पूरे फोड़े भरे थे, Dogs came and licked him. कुत्ते आकर उसके जख्मों को चाटते थे, Dogs came and licked his body. कुत्ते आकर उसके फोड़ों को चाटते थे। It was so painful. इतना दर्दनाक था। And the Bible also says बाइबल ये भी कहती है every crumb which falls from the table of the rich man. धनवान मनुष्य के मेज पर से गिरने वाले चूर-चार से And now this Lazarus is eating. वो अपना पेट भरता था। He's taking it and eating. वो उस चूर-चार को उठाकर अपना पेट He's भरता है। taking it and eating. वो लेता है, खाता है। And now this man is also died. एक दिन ऐसा हुआ ये कंगाल लाजर भी मर गया And now he is seen in the bosom of Abraham. और स्वर्गदूत उठा ले गए, अब्राहम के गोद में देखा He जा रहा है opened his eyes. और उसने अपनी आंखें खोली। This man is not buried. ये मनुष्य गाड़ा नहीं गया। Jesus didn't say that he is buried. यीशु ने ये नहीं कहा कि कंगाल लाजर गाड़ा गया, But the rich man was buried. लेकिन वो धनवान मनुष्य जरूर गाड़ा गया था। But this man, लेकिन ये आदमी, this beggar Lazarus, ये कंगाल लाजर he opened his eyes. अपनी आंखें खोली, He is seen in the bosom of Abraham. अब्राहम की गोद में पाया गया। Every time हर बार the rich man's crumb falls down, हर बार जब भी ये धनवान मनुष्य का चूर-चार गिरता है, this man picks it ये कंगाल लाजर उठाता है and he eat it और खाता है and he eat it. और खाता है। What is that crumb which is fallen from the rich man's table? धनवान मनुष्य के मेज पर से गिरने वाला चूर-चार क्या है? What is that rich man denied and threw it away? वो चूर-चार जो उस धनवान ने खाने से इनकार किया, नहीं चाहिए करके फेंक दिया था। Rich man thought it is waste and he threw it. उसको लगा इसकी आवश्यकता नहीं है मुझे करके वो टुकड़े फेंकता। For this beggar Lazarus, इस कंगाल लाजर के लिए that became his food. वो गिरा हुआ चीज उसका भोजन था। And if you read carefully, अगर आप सावधानी से पढ़ेंगे this ना, rich man ये धनवान आदमी in the hell, नरक में he was crying for one drop of water. अधोलोक से एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा है। Father, you send me. हे अब्राहम पिता, भेज Father, you लाजर send को, Lazarus. लाजर को भेज, One drop of water. पानी का एक One बूंद drop of water on my tongue. मेरी जीभ को ठंडी करने के लिए एक बूंद पानी। He was crying for one drop of water. एक बूंद पानी के लिए तड़प रहा And he था। said, have mercy. उसने कहा हे पिता मुझ पर दया कर, Have mercy. मुझ पर दया कर, Have mercy. मुझ पे दया कर। Do you know what he rejected when he was in this world? मालूम है जब वो उस दुनिया में तो था तब उसने क्या तिरस्कार कर दिया? Do you know what he thought it is waste and it is not required when he was in this world? कि उस दुनिया में रहते समय जो चीज उसको नहीं चाहिए था करके ठुकराया था, क्या था मालूम? The same mercy of God. वही परमेश्वर की दया। He rejected it when he was in this world. इस दुनिया में रहते समय जब उसके पास आई वो दया उसने ठुकरा दिया। He thought he is having everything.
उसको लगा मेरे पास तो सब कुछ है, Oh, I have everything. ओ मेरे पास इतना चीजें God हैं। is showing mercy on me. परमेश्वर मुझ पे दया दिखा रहा है, God's favor is upon me because I am a good man. मैं एक अच्छा आदमी हूँ, परमेश्वर अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे He दिखा रहा didn't है। eat the mercy of God. परमेश्वर की दया नहीं खाई He is उसने, not fed with the mercy of God. परमेश्वर की दया को आहार नहीं बनाया उसने। But this beggar Lazarus, लेकिन ये कंगाल लाजर he ने, knows every breath of his life is the mercy of God. वो जानता था कि उसकी जिंदगी की हर एक सांसें परमेश्वर की दया से चल Even रही है। his life is so painful, so miserable. भले ही उसका जीवन इतना दर्दनाक और इतना भयानक था, तो भी He just longed for the mercy of God. परमेश्वर की दया को इतना चाहता था। He was fed with the mercy of God. परमेश्वर की दया से पेट भरता, He longed for the mercy of God. परमेश्वर की दया के लिए तड़पता। The meaning of Lazarus is और लाजर का अर्थ ही ऐसा है, God helped out. परमेश्वर ने जिसकी सहायता करी, God helped out. जिसको परमेश्वर ने सहायता करी When he cried for the mercy of और God, परमेश्वर की दया के लिए वो उसने पुकारा, when he cried for the mercy of God, जब उसने पुकार लगाई, God helped out. परमेश्वर ने उसकी सहायता And की he poured his mercy into Lazarus. और लाजर पर अपनी दया उसने उंडेली। He poured his mercy into the life of Lazarus. लाजर के जीवन में अपनी दया उंडेली There परमेश्वर। are so many people today, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं like दुनिया this में, rich man, इस धनवान आदमी की who तरह, are rejecting the mercy of जो God, परमेश्वर की दया को ठुकरा रहे हैं, who give no view to the mercy of God. परमेश्वर की दया पर नजर तक नहीं They are घुमाते, not thankful to the mercy of God. परमेश्वर की दया के लिए धन्यवादी भी नहीं They है। think they are righteous, they are rich. उनको लगता है मैं धर्मी हूँ, धनवान हूँ, But what is happening? लेकिन देखो क्या हो रहा है, Crying in the hell, नरक में, अधोलोक में पीड़ा में तड़प रहा है, going to the hell and crying for mercy. अधोलोक में जाके दया के लिए भीख मांग रहा है। In hell, नरक में mercy is ceased. दया नहीं मिलती, There is no mercy in the hell. नरक में दया नहीं है। But this poor Lazarus, लेकिन ये कंगाल लाजर, beggar Lazarus, भिखारी लाजर, he sought a good thing. उसने अच्छी चीजों को खोज लिया। When the mercy was available, जब दया उसके लिए उपलब्ध थी, he got it. उसको मिल गया। So many people rejected, इतने लोगों ने ठुकरा दिया था, but this man got it. लेकिन ये आदमी को मिल गया। He is called a beggar in this world, और इस दुनिया में वो कंगाल जरूर कहा गया, but in the heaven, in the bosom of Abraham, लेकिन स्वर्ग में यानी कि अब्राहम की गोद में he will live for eternity. अनादि अनंत काल, सनातन तक, वो अनंत काल तक रहेगा। Forever and ever he will live in eternity. हमेशा 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 के लिए अनंतकालिक जीवन He is जिएगा। in the bosom of Abraham. अब्राहम की गोद में है वो, He is in the bosom of Abraham. He is in heaven. अब्राहम की गोद में है He- वो, सुखलोक में है He is inside Father. वो, पिता के अंदर है। Who is the bosom of the Father? और पिता का गोद क्या है? Who is the bosom of the Father? कौन है पिता का गोद? Our Lord Jesus Christ is the bosom of the Father. हमारा प्रभु यीशु मसीह ही तो है पिता का गोद। He is in Christ forever and ever. वो मसीह में अब सदा सदा के लिए है। Today, और आज before we get into the actual message, हम वास्तविक संदेश में जान से पहले, are you satisfied with your life here? क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं क्या आज? We are nothing. देखिए हम कुछ भी नहीं है। Many people think they are great. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वो महान है। They think God's favor is coming upon them because they are good people. उनको लगता है वो अच्छे लोग हैं, इसलिए परमेश्वर की दया उन पर आ रही है। It is the mercy of God. परमेश्वर की दया है। We are not worthy anymore, हम योग्य नहीं है, but it is the mercy of God. लेकिन परमेश्वर की दया के कारण है। And we try to compare ourselves with God. हम अपनी तुलना परमेश्वर से करने का प्रयास करते हैं। There is no one like God. परमेश्वर के जैसा कोई नहीं है। There is none like God. परमेश्वर के जैसा कोई है ही नहीं। There is no contrary to God. परमेश्वर के विरोधी भी नहीं खड़े रह There सकते। is nobody, कोई नहीं, nothing. कोई चीज नहीं। You cannot be in competition with God. परमेश्वर के साथ आप प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। He is a holy one. वो पवित्र है। The Bible says बाइबल ये कहती है He is a holy one. वो पवित्र है। And in heaven they are singing, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. और स्वर्ग में ये गीत गाया जाता है, पवित्र 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 है सर्वशक्तिमान परमेश्वर। And the Hebrew word is taken from a word called kadosh. और उसके लिए इब्री शब्द लिया गया है कदोश। And they are singing in heaven, kadosh, kadosh, kadosh. और वो स्वर्ग में यही गीत गा रहे हैं,
कदूस कदूस कदूस, which means जिसका अर्थ है there is none like you, O तेरे God. जैसा कोई नहीं है The meaning परमेश्वर। of Kadosh is कदूस का मतलब है there is none like you. तेरे जैसा कोई They are नहीं। singing in heaven. स्वर्ग में गा रहे हैं There is none like you, O तेरे God. जैसा कोई नहीं There परमेश्वर, is none like you, O तेरे God. जैसा कोई नहीं Oh, परमेश्वर। they are singing whenever they see God. और जब जब परमेश्वर को देखते हैं, यही गीत गाते हैं, He is a separated God. वो सबसे अलग There है। is no competition to our God. वो परमेश्वर के साथ तुलना भी नहीं कर सकता, प्रतिस्पर्धा भी And नहीं। how can we think that we are great, rich, and all? ऐसी स्थिति में कैसे हम अपने आप को महान और धनवान समझते हैं? Go to God and tell, जाकर परमेश्वर से I कहिए, am nothing, O God. प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, I need your mercy, O God. मुझे तेरी दया चाहिए, I need your mercy, O God. मुझे तेरी दया चाहिए, I need your mercy, O God. मुझे तेरी दया We चाहिए। will live by the mercy of God. और वो तुम पर अपनी दया उंडेलेगा। Today, shall we pray for the mercy of God? क्या आज हम परमेश्वर की दया मांगेंगे? Is there anything in your heart that you are satisfied with? क्या ऐसी कोई चीज है जिससे आपका हृदय तृप्त हो गया है? Everything is fine, everything is all right, so I will go to heaven. और सब कुछ ठीक है, सब अच्छा है, तो मैं स्वर्ग ही जाऊंगा वाला। Is there any pride in your heart? क्या कोई घमंड आपके दिल में है? Today, shall we turn to God? आओ हम परमेश्वर की ओर मुड़े क्या? Shall we return to God? क्या परमेश्वर के ओर पास लौटें क्या? Shall we become beggars? क्या हम परमेश्वर के पास वो भिखारी बने क्या? Lazarus begged the mercy of God. लाजर ने परमेश्वर की दया मांगी, That's why Jesus called him a beggar. इसलिए यीशु मसीह ने उसे कहा कंगाल लाजर। Oh, he is called a beggar because he begged the mercy of God. और उसे कंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि वो दया मांगता रहता है। Let all of us become beggars who beg the mercy of God. आओ हम सब जन परमेश्वर की दया मांगने वाले भिखारी बने। Let us beg the mercy of God. परमेश्वर की दया भीख में मांगे। Shall we repent today? आइए मन फिराएं आज। Shall we close our eyes? आइए आंखों को बंद करते हैं। And let us all close our eyes. आइए सब जन अपनी आंखों को बंद करेंगे। Open your heart to God. परमेश्वर के लिए अपना दिल खोलो। Are you satisfied in this world? क्या इस दुनिया में आप संतुष्ट हो गए हो क्या? Are you satisfied? क्या आप संतुष्ट हैं? हाँ? Are you thinking you are rich and you have everything? क्या आपको ऐसा लगने तो नहीं लगा है You कि are- आप धनवान हैं, आपके पास सब कुछ है You are eligible to go to heaven. और स्वर्ग जाने के आप लायक हैं? Remember, लेकिन याद रखो, it is the mercy of God. ये परमेश्वर की दया है। It is the mercy of God ये- which will take us into the bosom of Abraham. ये केवल परमेश्वर की दया ही हमको अब्राहम की गोद तक पहुंचाती है। When you are in this world, देखो जब आप इस दुनिया में हैं now you talk to God. तभी अभी आप परमेश्वर से बात कर लें। You ask Him, आप उससे मांगिए, I am sorry, Lord. मुझे माफ कर प्रभु, I am sorry, Lord. प्रभु मुझे माफ कर। I will become a beggar from today. आज से मैं तेरे सामने भीख मांगता I हूँ। will seek your mercy, O God. I will beg your mercy. सिर्फ मैं तेरी दया को खोजूंगा और मांगता हूँ उसी को। Help me, O God. मदद करो परमेश्वर, Help me, O God. मदद कर परमेश्वर, Help me, O God. मदद कर परमेश्वर। Or else I will be buried, O God. ओ अन्यथा मैं तो गाड़ दिया जाऊंगा I will प्रभु। cry for one drop of water in the hell. नहीं तो फिर मैं भी नरक में जाके एक बूंद पानी के लिए तड़पता रह जाऊंगा। Make me a man who will seek your mercy, O God. मुझे ऐसा मनुष्य बना जो तेरी दया को खोजने वाला हो। Help me, O God. मदद करो I परमेश्वर। want you, मैं Jesus. तुझे चाहता हूँ यीशु, I want you, Jesus. तू मुझे चाहिए यीशु। I need mercy in my life, O मेरे God. जीवन में तेरी दया चाहिए प्रभु। I want to become like this beggar Lazarus. इस कंगाल लाजर की तरह मैं भी बन जाना चाहता Or हूँ। in the spirit, ओ आत्मा में, seeking the mercy of God. ओ परमेश्वर की दया मांगता हुआ, Seeking the mercy of God. परमेश्वर की दया चाहता हुआ। Grant me, O God. मुझे दे प्रभु, Grant me, Lord. मुझे दे प्रभु, Grant me. दे मुझे, Grant me. मुझे दे। In Jesus' name I ask you, Father. यीशु के नाम से मैं तुझसे मांगता हूँ पिता। Amen. आमेन, आमेन। आमेन। Let us not be satisfied with the things of the world. आओ हम संसार की चीजों में ही संतुष्टि न बना के बैठ जाएं I am happy. कि मैं खुश हूँ। Every morning, हर सुबह seek the mercy of God. परमेश्वर की दया को खोजो। Everything what we have is by the mercy of God. जो कुछ आज हमारे पास है परमेश्वर की दया ही से है। We live by the mercy of God. परमेश्वर की दया से ही हम जीवित हैं। The world will come hit us because this beggar Lazarus have sores on his body and dogs are coming and licking him. ये दुनिया आकर हमें शायद ठोकर मार सकती है कंगाल लाजर की तरह, जैसे कुत्ते आकर उसको चाटते थे।
Your goal is the bosom of Abraham. लेकिन उन सब पर ध्यान नहीं देंगे। हमारा लक्ष्य अब्राहम की गोद है, Our goal is Jesus. हमारा लक्ष्य यीशु है। Let your goal become Jesus. आइए आपका भी लक्ष्य यीशु ही बन जाए। Amen. आमेन। God bless you all. प्रभु आप सबको बहुत ही आशीष दे। Amen. आमेन।